Good morning, students. This session is for class 11th, and we are continuously solving the numerical problems of chapter 6. Okay, so in last sessions we have completed the exercise 6.3, and today we are ready to understand the solution of question 6.4. Okay, so let us see what is question and its solution. So question is, I am reading the question and you can read this question on your screen. It is shown on your screen. Okay, so let's see. The potential energy function of a particle executing linear simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square upon 2. So this is the equation of potential energy for linear simple harmonic motion. Okay, where k is the force constant. So you can see this k is known as force constant. We have already discussed about force constant, and the value of k is given, that is k is equal to 0.5 newton per meter, or you can say 0.5 newton meter inverse. And the graph of Vx versus x is shown in figure 6.12. So this is the graph shown in this is figure 6.12. So that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches at x is equal to plus minus 2 meter. So this is the question. I hope you understand. Let me read the question again so you can understand what is the meaning of this question. The potential energy function of a particle executing simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square by 2, where k is a force constant of the oscillator. Student, oscillator means the particle which is performing simple harmonic motion. Okay, now k is given, that is 0.5 newton per meter, and the graph of Vx versus x is shown in figure 6.12. So that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus minus 2 meter. So I hope you understand the question. स्टूडेंट, एक्चुअल में क्वेश्चन की का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ये है कि कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये इक्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिस इक्वेशन में के जो है फोर्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर है। इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है, देख सकते हैं ये इक्वेशन एक पैराबोला का है, तो ये जो ग्राफ इसके लिए दिया गया है वो इस फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि अगर किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी 1 जूल है और वो इस पोटेंशियल के अंडर मोशन में है, तो ये वापस आएगा, मतलब ये वापस आएगा जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, मतलब इस पॉइंट से ये रिटर्न हो जाएगा, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता है, ये पॉइंट प्लस 2 पे है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये -2 पे है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, यहाँ तक आएगा और इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, इधर चला आएगा और फिर ये नहीं जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा। समझ गया? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका आंसर देखते हैं। आप अगर चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं सोल्यूशन। So try to solve this question by yourself. Pause this video. Student, these are very interesting and very important questions. Okay, so try to solve by yourself. You can use your concept of the chapter and try to solve. If you can get success, that is good. If not, you can see the solution which I am going to explain here. So let's see the answer. The total energy of the particle is given, that is 1 joule. Okay, and now force constant is 0.5 newton per meter. These things are given here. Okay, now let's find out the kinetic energy of the particle. So kinetic energy of the particle is given by k is equal to half mv square. This is the formula for kinetic energy. But since total energy is defined as the kinetic energy plus potential energy is equal to 1 joule, so you can see E is equal to V plus K. V is potential energy, K is kinetic energy, and total energy is E. Now we can replace E by 1, so you will get
1 is equal to half kx square plus half mv square. So finally you get this relation for the total energy. Okay. Now you can see at the moment of the turn back the velocity and hence k becomes 0. So at the term when ये जब इस आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो रिटर्न होता है वापस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपवर्ड चल रहा है, रिटर्न जब होगा तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रेस्ट में आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद ही ये वापस आ सकता है। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि इस केस में वेलोसिटी होगी 0 जब ये रिटर्न बैक कर रहा होगा। तो यहाँ पे v होगा, एक्चुअल में ये v है, ठीक है, ये v 0 होगी। तो यहाँ पे v 0 तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी और आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। यहाँ पे हाफ के की वैल्यू 0.5 एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ज़रा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पॉइंट कैंसिल करके 10। अब यहाँ पे ये हो गया 5/20, 5/20 को एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। फिर इसको अरेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, और इसको अगर रूट निकालें तो एक्स की वैल्यू +2 या फिर -2 दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की वैल्यू +-2 आ रही है। और ये कब आ रही है? ये केस जबकि v इज इक्वल टू 0 हो रहा है। v इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमको ये मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो 0 होने के बाद क्या हुआ, अब ऊपर जा सकता है जब मोशन इस टाइप का है, और आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो क्या ये अब ऊपर जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये क्या होगा, 0 हो गए, ये वापस आएगा और फिर ये इस डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे आने के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ये फिर रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि ये पार्टिकल अब ऊपर नहीं जा सकता है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लीनियर simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square by 2, where k is the force constant of the oscillator. For k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph of Vx versus x shown in the figure show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches at x is equal to +-2। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये x is equal to +-2 पे होगा तो ये रिटर्न बैक हो जाएगा, और इसके लिए आपने क्या दिखाया कि +-2 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 6.4 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 6.5 क्या है। तो हमको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर्स हमें यहाँ पे 1, 2 लिख सकते हैं आप। इनके आंसर्स आपको यहाँ पे देने होंगे। देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अपने से आप ट्राई करिएगा हर क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द केजिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन at whose expense is the heat energy required for burning obtained, the rocket or the atmosphere। तो यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब कभी रॉकेट मूव करता है तो बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से यहाँ पे बर्निंग हो सकती है। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। तो यहाँ पे बर्निंग के लिए हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर देखिए, द हीट एनर्जी इज गिवन बाय द रॉकेट।
द बर्निंग of the casing of a rocket in flight due to friction result in the reduction of the mass of the rocket. तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये है जो रॉकेट का मास है, वहाँ से इसको मिलती है एनर्जी. अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. ठीक है, इतनी होती है. अब यहाँ पे देख सकते हैं द रिडक्शन इन रॉकेट्स मास, रॉकेट के मास में जो मिनिमम मतलब कमी आती है, रिडक्शन होता है, कॉजेज अ ड्रॉप इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को ये कम करता है. देयरफॉर द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉकेट. और इस तरीके से जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रॉकेट से फुलफिल होती है. यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए, द कॉमेट मूव्स अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. कॉमेट्स आप जानते होंगे क्या होता है. ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है. इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये है सन, तो सन अगर ऐसी ऑर्बिट है इसको सर्कुलर बोलते हैं. बट इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स इस टाइप के ऑर्बिट में, ये इलिप्टिकल टाइप की है, ये दूर की तरफ होता है, इसके बाद ये पास होगा फिर दूर होगा. तो ये वाला जो है इलिप्टिकल है, ये है सर्कुलर. ठीक है, तो यहाँ देखिए, कॉमेट मूव्स अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स velocity in general. It the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए जो ये कॉमेट है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता. ठीक है, और कॉमेट की वेलोसिटी की वजह से ये होता है, सॉरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये नहीं होता है नॉर्मल. इट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट इज जीरो. जबकि ये नॉर्मल नहीं होता है, फिर भी कंप्लीट साइकिल में ये टोटल वर्क डन जीरो क्यों होता है, ये क्वेश्चन है. मैं कहने का मतलब है कि जब कॉमेट इसमें चलता है तो इसकी सपोज वेलोसिटी भी है. अब हर जगह पे जो फोर्स है और इसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. फिर भी कंप्लीट जब ये करता है वन रिवोल्यूशन तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होता है. ऐसा क्यों? ठीक है, ये है क्वेश्चन. सो लेट्स सी द आंसर. सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर वन क्लोज पाथ इज जीरो, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट इज ऑफ अ कॉमेट इज जीरो. सो स्टूडेंट, आई होप यू नो व्हाट इज conservative force. Since the gravitational force is conservative force which is working in this case the applied force, that is gravitational force, is a conservative force and work done by conservative force in one complete cycle is zero, because work done by the conservative force is point dependent, it is not path dependent. Okay, so since initial point and final point in case of the one complete revolution is same, so in that case the work done by gravitational force on elliptical path also becomes zero. I hope you understand. Let's see the third point. An artificial satellite orbiting the Earth in every thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmosphere resistance, however small. Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the Earth? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं. कैसे लॉस करते हैं? डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, जो एटमॉस्फेयर है उसके अगेंस्ट जब ये मूव करते हैं तो इनकी कुछ एनर्जी लॉस होती है, हाउएवर स्मॉल, भले ये बहुत कम है. देन वाई, या फिर बोल सकते हैं वाई देन डज
इट्स स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, तब इनकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली क्यों बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे ये अर्थ के क्लोज आते हैं। तो आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा इसमें, और इसका आंसर है फोर्स जो कि उस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लगेगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, उसी को यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। When an artificial satellite orbiting around the Earth moves closer to the Earth, its potential energy decreases. इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन हाइट, सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अब सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी बिकॉज वी नो दैट द एनर्जी इज कंजर्व, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सिंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, so you can see the reduction in potential energy results in an increase in kinetic energy. Hence the velocity of the satellite increases. However, due to atmospheric friction, the total energy of the satellite decreases by small. तो आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से जो एनर्जी में रिडक्शन होगा, जो कमी होगी वो बहुत स्मॉल होती है, बट ये कमी टोटल एनर्जी में होती है। बट जो ये डाउनवर्ड आ रहा है अर्थ की तरफ, इसकी वजह से इसकी हाइट कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी टोटल एनर्जी में थोड़ी कमी तो आ रही है, बट इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों होगी? ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑन द बेस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन फिगर 6.13 फर्स्ट केस, द मैन वॉक 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड। इन फिगर 6.13 ही वॉक द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। द रोप गोज ओवर अ पुली एंड मास ऑफ 15 kg हैंग एट इट्स अदर एंड। इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। अब इन दोनों में से कौन से केस में वर्क ग्रेटर किया गया है? यहाँ पे देखिए दोनों में ही 2 मीटर का मूवमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मास भी गिवन है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मोशंस के कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। तो एक कंडीशन में जो पुली वाली है उसमें ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस, यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं। मास है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज 0। फोर्स की वैल्यू mg। नाउ दिस थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये थीटा की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वर्क 0। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड में ये देखिए मास, डिस्प्लेसमेंट, here the direction of force applied on the rope and the direction of the displacement in the rope are same, therefore the angle between theta is equal to 0. Since theta cos theta is equal to 1, then work done W is equal to Fs cos theta, that is mgs, and it will be 494 joule. Hence more work is done in second case. So I hope you understand, but let me explain the things by using the diagram which is given here in this question. So let's see. Student, this one is the box and weight is working downward. To lift this at the same position, the muscular force is applied in perpendicular direction. It means it must be applied opposite to the weight so that it is
at the same place. Okay, it means the applied force is in this direction. This one is applied force, and this one is the gravitational force W. So these two are equal to each other, so that it is in rest here. Now it is moving in this direction, so this one is displacement. So in this case, the angle between the applied force and the displacement is 90 and the work done is 0. But in this case you can see the force is applied here. Now here force is applied in upward direction by this string, and the direction of motion of the object is also same, that is upward. So the work done is not 0 here because theta between this force and this displacement is 0 degree. So cos theta is 0 here. So in this case W is equal to F into S, that is Fs cos theta. So this one is F into S, and F is equal to mg. So this one is mg into S, since cos 0 is equal to 1. So you will get the answer after calculation. So student, I hope you understand the concept of these 1, 2, 3 and 4 part of this question. This is very interesting part. Try to solve these questions by yourself and you will get more deep knowledge about the concept. Okay, so I hope you understand how it is solved. Now we are ready to solve question 6.6. Underline the correct alternatives. So let's see. When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered. तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पार्ट सही है. सेकेंड, work done by a body against friction always result in loss of kinetic energy or potential energy. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं या तो इनमें से कोई एक सही है, उसको बताना है कौन सा सही है. थर्ड, the rate of change of total momentum of a many particle system is proportional to the external force sum of the internal forces on the system. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टॉपिक है, अगर वो आपको उसका स्टेटमेंट याद है तो आप यहाँ पे आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं. फोर्थ, in an inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system of two bodies. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि inelastic collision है तो क्या होगा, टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज. तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज है, ऑप्शंस मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं. विच डू नॉट चेंजेज आफ्टर द कोलिजन आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन. आपको डिफरेंस अगर पता है कि कौन से कोलिजन्स इन इलास्टिक होते हैं और कौन से इलास्टिक कोलिजन्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं. तो देखते हैं आंसर्स क्या क्या हैं हमारे. ठीक है, क्वेश्चन एक बार फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases,
डिक्रीजेज रिमेन्स अनअल्टर्ड, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, when a conservative force does a positive work on a body, when it displaces the body in the direction of force, as a result the body advances toward the center of the force. It decreases the separation between the two and thereby the decreasing the potential energy of the body. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं, a conservative force does a positive work on a body when it displaces the body in the direction of the force। तो कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब वर्क करता है पॉजिटिव वर्क, तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को, जैसे अर्थ है ये, अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कोई बॉडी है। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर इस पे वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ले आएगा तो ये हाइट जो होगी ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी। तो हाइट डिक्रीज होगी तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ और पास आएगा। अब अर्थ की तरफ पास आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन बॉडी व्हेन इट डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एज अ रिजल्ट द बॉडी एडवांसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ द फोर्स मतलब इधर ही दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करेगी। इट डिक्रीजेज द सेपरेशन बिटवीन द टू, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होता है, और जिससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये है फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्क डन बाई ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर दोनों। तो अगर किसी बॉडी पे फ्रिक्शन से वर्क होता है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, द वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड हेंस देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑलवेज। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, जब आप मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा तो वो ऑलवेज क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा मीन्स काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इस तरीके से फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पे वर्क करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी को ऑलवेज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टू द external force sum of internal forces on the system is proportional to है यहाँ पे। So the rate of change of total momentum of many particle system is proportional to the external force sum of internal forces on the system। तो आपको मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन पता है तो उससे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे गिवन है, internal forces are irrespective of their direction cannot produce any change in the total momentum of the body। तो यहाँ देख रहे हैं इंटरनल फोर्स से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, hence the total momentum of a many particle system is proportional to the external force acting on the system। आपको पता भी है रिलेशन क्या होता है, F is equal to dp upon dt। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड नेट फोर्स है यहाँ पे, तो उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है जो कि रिलेटेड है इन इलास्टिक कोलिजन से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिसमें कि
जो मोमेंटम और जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, बट जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो आंसर है, यहाँ पे देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व वेदर इट इज एन इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये देखिए ये ऑलवेज कंजर्व होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम है ये ऑलवेज कंजर्व होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने 6.6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये 6.7 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, और इनका आंसर लिख के आपको बताना होगा, सेंड करना होगा दिए गए मेल पे। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और इन सभी को आपको पढ़ना है और फिर इसके आंसर्स बताने हैं, ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, तो यही होमवर्क है आपका, और अपने से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, कीप practicing, it will help you to understand the concept. So thank you for watching this session.